Jai India students, I am your science teacher Dr. Preeti Mittal and we are studying the chapter How do organisms reproduce? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट्स में हमने पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में स्टडी किया था एंड नाउ वी विल सी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से होता है। So in this video we will understand about the structure of the flower, different parts of the flower, and also we are going to discuss about types of pollination and what is germination. So all that we will cover in this interesting video. So let's start with that. Structure of flower. Flower की अगर हम parts की बात करें तो flower basically has 4 parts. These parts are the green leaf-like structure, that is the sepals that are attached to the stalk. Then the colorful part of the flower that gives beautiful colors to the flower like purple, orange, pink, that is the petals. And next comes the male reproductive part of a flower, that is stamen, and female reproductive part of a flower, that is pistil. Okay, that's not PISTOL, that is PISTIL. Okay, so these are the parts of the flower. In a flower, a green leaf-like structure is there, that is at the base of the flower, that is the sepal. Sepal protect करके रखता है फ्लावर को when the flower is in the bud stage. तो जब कली के फॉर्म में होता है कोई भी फ्लावर तब उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये सेपल। तो जब भी कोई बर्ड ओपन होगी तो सबसे पहले सेपल ओपन होंगे और फिर उसके पेटल्स ओपन होंगे। पेटल्स गिव्स द ब्यूटीफुल कलर्स टू द फ्लावर। तो अलग अलग सुंदर कलर हमारे फ्लावर्स को देते हैं ये सुंदर पेटल्स। बट दीज पेटल्स आर सो ब्यूटीफुल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट क्यों करना चाहते हैं, वी विल सी टू दैट। नेक्स्ट कम्स द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज स्टेमन। इस स्टेमन के फिर 2 पार्ट्स होते हैं। जो टॉप मोस्ट पार्ट है दैट इज नोन एज एंथर, एंड जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एंथर को कनेक्ट कर रहा है फ्लावर के बेस से, दैट इज नोन एज फिलामेंट। दिस एंथर हैज पॉलन ग्रेन्स ओवर इट। तो अगर आप एंथर को टच करोगे तो आपके फिंगर्स पे एक येलो पाउडरी सब्सटेंस हो जाएगा। You will observe a yellow powdery substance on your fingers and that are the pollen grains. ये pollen grains क्या है? ये pollen grains ही वो cells हैं जिसके अंदर male gamete present है। तो these pollen grains only contain the male gamete of our flower. Okay? So pollen grains के अंदर है male gamete. These pollen grains are present over the anther and this anther is connected to the base of the flower by the filament. और एंथर एंड फिलामेंट दोनों को मिलाकर हम कहते हैं स्टेमन। नाम में ही मैन आ रहा है तो याद रहेगा दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। नेक्स्ट टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पिस्टल। women should have pistol with them for their security, है ना? Okay, so that's jokes apart. This pistil represents the female reproductive part of a plant and this pistil is having 3 subdivisions. इस pistil के फिर 3 parts होते हैं। जो topmost part है that is having a sticky nature and that is known as stigma. Stigma के नीचे एक tube like structure है that is known as style. So girls have style definitely. And सबसे नीचे वाला part that is the swollen part that is known as ovary. इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल दैट आर कंटेनिंग द फीमेल जर्म सेल दैट इज अ फीमेल गैमेट ऑफ अ फ्लावर। तो फीमेल गैमेट ओव्यूल में है एंड दिस ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ovary. This female reproductive part of a flower includes 3 parts. Topmost part is stigma, then comes the style and then the ovary containing the ovules. Now, जब pollen grains, that is the male gamete, pollen grain is containing the male gamete. तो जब ये pollen grains स्टिग्मा पर आते हैं तो ये ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर and this transfer of pollen grains from the anther to the stigma is known as pollination.
जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आते हैं तो दे गेट स्टिक ओवर द स्टिग्मा। स्टिग्मा पे आने के बाद ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं, दे गेट स्टिक ओवर द स्टिग्मा एंड फिर पॉलन ग्रेन्स में से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जो स्टिग्मा को पियर्स करके स्टाइल के अंदर एंटर कर जाती है। जब ये स्टाइल के अंदर एंटर करती है तो दैट डेवलप्स द पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब स्टाइल के अंदर ग्रो करती है एंड इट रीचेस अप टू द ओवरी, क्योंकि ओवरी में है ओव्यूल दैट इज कंटेनिंग द फीमेल गैमेट। तो ये पॉलन ग्रेन्स में से मेल गैमेट निकलकर फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है एंड देन अकर्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट्स, दैट इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। जब फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट ही दैट विल बी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। इसको ही हम कहेंगे सीड। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है एक सीड में। बट ओवरी का क्या होगा? ओवरी अपने सीड को प्रोटेक्शन देगा एंड दैट इज व्हाई दिस ओवरी विल बी कन्वर्टेड टू फ्रूट। तो जो आप फ्रूट्स खाते हो, जो पल्प पार्ट व्हेन यू आर ईटिंग एनी फ्रूट, जो पल्प पार्ट आप खा रहे हो दैट इज एक्चुअली द ओवरी, दैट रिप्रेजेंट्स द ओवरी ऑफ अ फ्लावर. So the ovule will be converted to a seed and the ovary will be protecting the seed and that will be converted to fruit. A fruit may have a single seed or many seeds depending कि उसके फ्लावर के अंदर कितने ओव्यूल थे। अगर फ्लावर के अंदर सिंगल ओव्यूल है तो वो सिंगल सीड फॉर्म होगी, बट अगर फ्लावर के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हैं then the fruit will be having many seeds in that. Okay, so that is how the fertilization is occurring and that is how fruits are formed. ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों ही जब अपीयर होते हैं, जब फॉर्म होते हैं, तो उससे पहले फ्लावर्स आते हैं और ये फ्लावर में ही ओवरी पार्ट कन्वर्ट होता है किसी फ्रूट या वेजिटेबल में। बट हमारे पेटल्स, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, इन सब का क्या हुआ? पेटल्स कहाँ गए? तो दे विल ऑल बी श्रिवल्ड ऑफ एंड दे विल फॉल ऑफ। श्रिवल ऑफ मतलब ये सब सूख जाएंगे और ये फॉल ऑफ हो जाएंगे। So we will be left with just the ovary, that is the fruit, and the seeds that are representing the ovule. So isn't that interesting to know that the fruits that you are eating that are actually the ovary part of a flower. इससे पहले हमने pollination के बारे में भी बात करी थी। तो now let's see what is pollination and what are the types of pollination. What is pollination? The transfer of pollen grains from the anther to the stigma. मतलब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक इनका ट्रांसफर होने को कहते हैं pollination. And this pollination could be of two types, that is self pollination और cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके अटैच होते हैं, डेवलप होते हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब सेम फ्लावर के ही पॉलन ग्रेन्स भी हैं एंड स्टिग्मा भी उसी फ्लावर का है। बट अगर एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर स्टिक होते हैं तो दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। सो अब आता है इम्पॉर्टेंस हमारे पेटल्स का। इस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं कुछ पॉलिनेटिंग फैक्टर्स लाइक इंसेक्ट्स, हनी बी, विंड, वाटर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ये क्रॉस पॉलिनेशन में मतलब पॉलिन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। इस पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को इनवाइट करने के लिए ही हमारे पेटल्स दे आर हैविंग द ब्यूटीफुल कलर्स सो एज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। के इंसेक्ट्स आए, जब इंसेक्ट्स बैठेंगे तो उनमें एंथर में से पॉलन ग्रेन्स उनके लेग्स पर स्टिक हो जाते हैं and now when the insect sits on some other flower, that pollen grains will be transferred to the stigma of that particular flower. So the pollen grains are coming from some other flower and getting settled over the stigma of some other flower, that is known as cross pollination. बच्चों को इस टाइम पे एक क्वेश्चन आता है कि मैम अगर रोज के पॉलन ग्रेन्स जैस्मिन के ऊपर जाते हैं, अगर इंसेक्ट्स लेकर उनको जा सकते हैं तो क्या तब भी पॉलन ट्यूब डेवलप होगी, तब भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा? नो,
that won't be there. अगर pollen grains same species of flowers के होंगे तभी pollen tube develop होगी and then only the fertilization could be there. तो अगर डिफरेंट स्पीशीज के फ्लावर्स के एंथर में से pollen grains आ गए हैं तो दे विल बी रिमेनिंग देयर, दे विल नॉट बी डेवलपिंग द pollen tube और इसलिए फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं होगा. ओके, so that is about fertilization. Next, we have to talk about the types of plants also. That is unisexual and bisexual. Some plants have both the male and the female reproductive part in a single flower. That is same flower में ही male part that is stamen is also present and the female part that is pistil is also there. So such a flower that will be having both the male and the female gamete is known as a bisexual flower. Or bisexual flower की दो examples that are given in your book that you should remember are mustard and hibiscus. They both have both the gametes. Both the male and the female reproductive part are present in the same flower. Next type of flowers are unisexual plants. Unisexual plants वो होते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर फ्लावर में या तो मेल गैमेट होगा या फिर फीमेल गैमेट. Two such examples are watermelon and papaya. These flowers have just one gamete. अगर उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एब्सेंट होगा. और अगर उस फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टल इज प्रेजेंट, देन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विल नॉट बी देयर. ओके, इसमें से आपको क्वेश्चन फॉर्म थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किस प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है. यू कुड बी आस्क्ड दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन हैव सेल्फ पॉलिनेशन. और आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए और उन 4 एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल किसी यूनिसेक्सुअल फ्लावर का है. तो आपको याद रखना है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सेम फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों प्रेजेंट ही नहीं है. ओके, सो दैट विल बी देयर, जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट. ओके, नाउ कम द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन दैट इज जर्मिनेशन. जर्मिनेशन क्या होता है? हमने देखा था हमारा ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में. नाउ व्हेन वी सो दिस सीड इनटू सॉइल, इस सीड में से एक बेबी प्लांट डेवलप होता है and this developing seedling from a seed that is only known as germination. So development of a seedling from a seed is known as germination. जब germination होता है तो seed में से 2 parts arise होंगे. The root like structure is known as radicle and a shoot like structure जिसमें से future में shoot develop होगा plant का, that is known as plumule. So plumule will be giving rise to shoot of a plant, stem of a plant, and the radicle will be forming the future roots of the plant. Okay, so that is all about sexual reproduction in a flowering plant. The plants that can produce flowers are known as angiosperms. I hope you are clear with the concepts and do let me know about your feedback. Your comments are important for me. So that's all for today. Take care of yourselves and have a very nice day.